Very good morning. Uh, Hi friends, this is Ashwini Kumar Gupta, and yes, I love physics. So today what we are going to do is we will solve some questions related to the friction and the motion that is common and has been asked in various competitive examination, especially NEET and medical engineering preparation, that is IIT JEE advanced and mains, right? So, first of all, we should know about the uh, you know methodology, about the strategy that is planned by the agencies to get the papers for the student. Whenever we look the NEET exams paper, whenever we analyze the exam paper of NEET, so we see that the basic concept of the any topic has been asked in the formula, in the numerical. If you have the formulas, you are able to solve that particular you know numerical, right? But when you are going for IIT JEE and IIT Advanced, so here the core concept is needed. Your conceptual knowledge is required. What is your practical approach towards that numerical? It requires to be, your presence of mind should be there for that. Okay, so today what we are going to do is a question. I'm just going to explain you. I will explain two questions. For the NEET preparation related to the friction, right? So let's start. The question is saying that a car is negotiating a curved road of radius capital R. If you see the radius that is given as a capital R, okay, I'm just giving the data and then we will solve the question, right? Need not to learn the whole the question. So a car is negotiating a curved road of radius R. The road is bent at an angle of theta, that is, elevation angle is given as theta, that is as theta. Now, question is saying the coefficient of friction between the tires of the car and the road is mu s. The static friction that is given u as the static friction between the tires and the road, that is given as mu s. Okay. Now the question is saying the maximum safe velocity on the road is, what is the maximum safe velocity? That means by which it is not going to be toggle. Okay, so now how will we solve? Now you have to think about the question. What is saying that the radius of the path is capital R, the angle is theta. So first of all we have to draw. Whenever you are solving such kind of question ना, जब भी आप ऐसा क्वेश्चंस को देखो, सुनो, पेपर में देखो, तो सबसे पहले ना आपके दिमाग में एक इमेज बननी चाहिए, राइट? तो आप उस इमेज को रफ पे एक साइड बनाओ. तो हम यहाँ पर वही इमेज बनाने चल रहे हैं. ये देखो कुछ ऐसा सिस्टम है, राइट? यहाँ पर ये जो रोड है ये थीटा डिग्री पर झुकी हुई है. दिस इज थीटा डिग्री, राइट? ना जब हम फ्री बॉडी डायग्राम बना लेंगे, वेन एवर वी विल एबल टू ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम, इन दैट केस वी विल एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन. सो मैंने यहाँ पे क्या दिखा दिया? सपोज दिस इज योर कार. थोड़ा सा देख लीजिएगा, कार बनाना आना चाहिए ना, कार नहीं बन रहा है मेरे से. चलो ठीक है, सपोज दिस इज अ कार. अब यहाँ पर जब कार है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट इट्स डिफरेंट काइंड ऑफ फोर्सेज वॉट एवर वी आर हैविंग. तो जब हम ये जान जाएंगे कि कौन कौन से फोर्सेस हैं तो हमारे लिए आसान होगा, है ना? सो हम लगाते हैं. सबसे पहला फोर्स हमें देखिए, सबसे पहले डायग्राम जब भी बनाइए तो सबसे पहला फोर्स आप दिखाओ टूवर्ड्स द ग्रेविटी, इट्स वेट, दैट इज m इंटू जी. सबसे बिना सोचे, क्योंकि हमेशा बॉडी इंक्लाइन प्लेन पर हो या बॉडी प्लेन सरफेस पर हो, वॉट एवर द सरफेस इज, जो बॉडी का वेट है, जो कार का वेट है, इट विल एक्ट ऑलवेज डाउनवर्ड. सो दैट इज m इंटू जी. ओके, द थिंग इज सेकेंड, जिस सरफेस पर बॉडी है उस सरफेस से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो आप, एंड दैट इज व्हाट, दैट इज द नॉर्मल कैपिटल N. दिस इज द नॉर्मल ऑफ द, ये क्या हो गया? इसका नॉर्मल हो गया. ओके, बिकॉज ऑफ सरफेस से रिएक्शन मिलती है ना. सो दिस इज अ नॉर्मल एंड दिस इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन वी हैव ड्रॉन हियर.
ओके, दिस इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन, हमने ये ड्रॉ कर दिया, एंड दिस इज अ वर्टिकल लाइन। ओके, ये हम ऐसे ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है भाई, यहाँ तक ध्यान दिया। नाउ द फ्रिक्शन दैट इज एक्टिंग इज इन दिस वन एफ। ओके, ये ऐसे जा रही है। तो ये तो आपका एक सिंपल स्ट्रक्चर हो गया, बट अब हमें यहाँ पे देखना क्या है कि कौन कौन से कंपोनेंट कहाँ जा रहे हैं। इफ दिस इज थीटा देन इट विल बी थीटा, and if this is theta, the component, this component will be n cos theta, and this component will be n sin theta. Okay, in the same manner, if this is a f friction जो आपने दिखाया है इस डायरेक्शन में ऐसे दिखाया है, तो ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा ना। तो अगर ये थीटा है तो इधर आ जाएगा f sin थीटा, और इधर जाएगा आपको यफ कॉस थीटा, राइट। तो ये फ्री बॉडी डायग्राम है। अब मैं इसी को मैं अलग से यहाँ पे दिखाता हूँ, सारे फोर्सेस को एक जगह लगाता हुआ, तो आपको आसानी से समझ में आएगा। ओके, तो चलो देखते हैं। देखो सिंपल सा कंसेप्ट है, आई थिंक दिस इज विजिबल, राइट। दिस इज वर्टिकली फोर्स दैट इज गोइंग टू बी हैपन, दैट इज n cos थीटा, डन। Here in the downward, this is m into g. In the downward again, if you see, we are having f sin theta, and in the horizontal side, if we see, we are getting n sin theta, and in the same direction we are getting f cos theta, है ना। ये इतने फोर्सेस लग रहे हैं। यहाँ पर आपका ये n है जो नॉर्मल है, ये थीटा डिग्री पर, और ये आपका f है जो ये हो गया आपका थीटा डिग्री पर। तो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट टू सॉल्व दिस वन। ओके, नाउ क्वेश्चन कहता है कि द बॉडी इज फॉर द सेफ वेलोसिटी, द मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी फॉर द कार विल बी। ओके, there are some options are given, but we are not taking the options. We will try to solve this question. So if we going to check the vertical forces and the horizontal forces, देखिए सबसे आसान तरीका ऐसे क्वेश्चन को लगाने का यही होता है कि आप वर्टिकल फोर्सेस और हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को पहले देखो और उनको इक्वेट करो, राइट, बिकॉज ऑफ देयर बैलेंस। सेफ ड्राइव कर रहा है मतलब बैलेंस है। तो हम देखते हैं पहले इस पॉइंट पर, सपोज दिस पॉइंट इज P, तो एट पॉइंट P द वर्टिकल फोर्सेस आर, है ना। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन चेक करनी है, तो हम इक्विलिब्रियम कंडीशन देखते हैं यहाँ पर। तो बताओ भाई P पर क्या हो जाएगी इक्विलिब्रियम कंडीशन। एट पॉइंट P वर्टिकल इक्विलिब्रियम, अगर हम इक्विलिब्रियम कंडीशन की बात करें, देन व्हाट विल हैपन, n cos थीटा that will be equal to mg plus f sin theta, right? यहाँ तक कोई डाउट है? This is a vertically upward force, that is n cos theta, and the vertically downward force whatever we are having, that is f sin theta plus mg, right? So we can write this one like this one, m into g is equal to n cos theta minus f sin theta. This is the equation number 1. Okay, यहाँ तक क्लियर है भाई? मजा आ रहा है ना? ओके बच्चा पार्टी। Now at the same point for horizontal equilibrium, for horizontal equilibrium, if we are walking at the same point for the horizontal so horizontally क्या दिख रहा है, देखिए चूंकि ये सेम वेलोसिटी में सर्कुलर मोशन में जाने वाला है, so horizontal में देखिए दो फोर्सेस हैं, n sin theta and f cos theta. So we can write this here, n sin theta plus f cos theta is equal to mv square upon r. Now the question arises, sir ये कहाँ से आया, right? So because the body is moving on a circular track ना, inclined है तो सर्कुलर चल रहा होगा ना भाई, so यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स विल वर्क, राइट। तो जब सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाएगा तो दैट विल बी mv स्क्वायर बाई r. इट इज इक्वेशन नंबर 2,
यहाँ तक किसी को कोई समस्या हो तो बताओ. Anyone? Now, dividing बिकॉज अब हमें v चाहिए ना, तो हम v को देखते हैं. डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाई 1 वी गेट. हमें क्या करना है? व्हाट वी आर गोइंग टू डू? वी आर गोइंग टू डिवाइड द इक्वेशन नंबर 2 विद इक्वेशन नंबर 1. सो व्हाट वी विल हैव, लिसन, सी हियर, mv स्क्वायर अपॉन r इंटू m इंटू जी नीचे आ जाएगा क्योंकि डिवाइड इससे कर रहे हैं, इज इक्वल टू n sin थीटा प्लस s cos थीटा ओवर n cos थीटा माइनस f sin थीटा. आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी आप सभी को. राइट एवरीवन? ओके. नाउ m and m will cancel out. Now for safe velocity, अब देखिए मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ पे अपने पास स्पेस है. आई विल सॉल्व दिस वन हियर. फॉर सेफ वेलोसिटी वी कैन राइट v इक्वल टू v मैक्स. मतलब वो स्पीड जिस पे वो इजिली मूव कर सकता है, दैट इज सपोज v मैक्स. ओके. एंड एज वी नो दैट f इज इक्वल टू what will happen about the f will happen mu s into n. ये फार्मूला आपने पढ़ा है mu into r का. जो भी फ्रिक्शन फोर्स होता है वो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन और जो नॉर्मल होता है उसके मल्टीप्लिकेशन बराबर होता है. सो f will be equal to fs mu s into n. We will put values, these values in this one. We can write this equation number 3, right? So here what we are going to get again. See, here we will have v max square over capital R into G. That is equal to n sin theta, f की जगह mu s plus n, mu s n cos theta over, we can write n cos theta minus f, that is mu s into n sin theta. Okay. Now if we see we are having n common, so n will cancel out. ऊपर n कॉमन ले लिया, नीचे n कॉमन ले लिया, कैंसिल आउट. हम cos थीटा बाहर ले लेते हैं और यहाँ से देखो क्या हो जाएगा बेटा, ये v स्क्वायर मैक्स ओवर r इंटू जी इज इक्वल टू n cos थीटा हमने कॉमन ले लिया. यहाँ पे लोगे तो साइन थीटा बाई cos थीटा हो जाएगा ना. जब आपने cos लिया तो यहाँ पे नीचे आ जाएगा cos साइन थीटा बाई cos थीटा ना. तो साइन थीटा बाई cos थीटा क्या होता है? इट विल बी tan थीटा. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास? tan थीटा प्लस यहाँ से पूरा कॉमन ले लिया म्यू एस ओवर यहाँ से n cos थीटा आपने कॉमन लिया तो ये हो जाएगा 1 माइनस म्यू एस tan थीटा. राइट. और नीचे भी आपने क्या कॉमन लिया है? n cos थीटा कॉमन लिया ना. सो n cos थीटा विल कैंसिल आउट. सो इस आर जी को आप इधर लेके जाओगे तो ये हो जाएगा v स्क्वायर मैक्स इज इक्वल टू r इंटू जी ब्रैकेट के अंदर tan थीटा प्लस म्यू एस, और वी कैन राइट दिस वन म्यू एस प्लस tan थीटा ओवर 1 माइनस म्यू एस tan थीटा. ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? जल्दी देख के बताइए आप मुझे. राइट. दिस स्क्वायर इज गोइंग टू बी कन्वर्ट इनटू द स्क्वायर रूट. सो जब आप इसको हटाओगे यहाँ से, वी विल गेट दिस वेलोसिटी, द सेफ वेलोसिटी फॉर विच द कार विल ड्राइव. दैट विल बी रूट ऑफ आर जी ब्रैकेट के अंदर म्यू एस प्लस tan थीटा over 1 minus mu is tan theta. Right. I hope the solution you have seen here will be easy to understand to you all. आप इसको आसानी से समझ सकते हैं. हमने कुछ नहीं किया है, हमने फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ किया है, वर्टिकल कंपोनेंट को वर्टिकल के बराबर किया है, हॉरिजॉन्टल के समेशन को सेंट्रीपिटल फोर्स mv स्क्वायर r के बराबर किया है, एंड देन वी हैव डिवाइडेड द सेकेंड इक्वेशन बाय द फर्स्ट. सो जब हमने डिवाइड किया
वहाँ पर कुछ वैल्यूज़ हमने रखी कि सो दैट द सेफ वेलोसिटी इज रिप्रेजेंटेड एज वी मैक्स एंड एफ द स्मॉल एफ दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शन. It is substituted by mu s dot n, where mu s is the coefficient of friction and n is the normal to the surface. जो रिएक्शन है आपने जब सॉल्व किया आपको ये वैल्यू मिली, राइट. दिस इज लुक लाइक वेरी स्मॉल क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन ना, बट बिलीव मी दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन नीट. ये क्वेश्चन नीट में पूछा जा चुका है. Now see, if you have the concept, if you have the formulas, then you are able to solve any kind of question, right? So I hope that you have enjoyed this solution, and if you like this solution, then please subscribe and share on my channel, that is Let's Explore Knowledge. Thank you very much. Have a great day.